जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैथों उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे गुरु महाराज जी। थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना। सानू अपनी अनलिमिटेड अनबाइस्ड ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना। सानू ये स्वास देन दा शुकराना। हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी, इसका जिन्ना भी शुकराना करिए उन्ना ही घट है। जिस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ 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 ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਜਦ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਉਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ। ਕ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਨ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਸ ਅਲਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਬਸ ਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੂਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਮ। ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਹ ਹੋਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਐਸੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੰਦਲੈਸ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੜਕਾਨ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਜ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹ। ਔਰ ਸਭ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰੋਗੇ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਲਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। संगत जी मेरे तो कोई भी गलती है मैंने माफ़ करना। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਰਾਜਾ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, इन्ना ज़्यादा लव यू गुरु महाराज जी। शुकराना 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 शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी राज अंकुल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी आज जो मैं सत्संग शेयर करूँगी वो मेरे बच्चों के सत्संग हैं। संगत जी मेरी जो छोटी बेटी है वो एक बार उसकी आई में स्वेलिंग आ गई थी और हम लोग इंडिया में थे उस टाइम और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो गुरु महाराज ने एक सत्संग का इनवाइट भेजा। संगत जी वहाँ पे मेरे को रोटी प्रसाद की सेवा मिली और वहाँ पे जब मैं गई तो मैं बैठी थी, किसी ने मेरे को बोला आप गुरु महाराज को भोग लगाओ। उसके बाद वहाँ पे गुरु महाराज ने सत्संग भी शेयर कराया। वहाँ से आने के बाद उसकी आई का जो स्वेलिंग थी वो ठीक हो गई।
संगत जी एक बार मेरे को गुरु महाराज ने एक बार मॉर्निंग में बोला कि तू अपने घर छोटा सा सत्संग कर। तो ये थॉट मेरे पास जब आया तो ये भी थॉट आया कि गुरु महाराज बोल रहे हैं अपनी नेबर को भी बुला। संगत जी तो मैंने सोचा कि रात को जस्ट हमारी फैमिली और जो नेबर हैं उनको बोल देती हूँ, वो भी गुरु संगत है। तो संगत जी मेरी डॉटर जब आई उसने बताया कि वो स्कूल में स्टेयर्स से नीचे उतर रही थी, उसका पैर ट्रिप होने वाला था। गुरु महाराज की आवाज़ आई उसको कि जल्दी से रेलिंग्स पकड़। उसने पकड़ा और वो बच गई। संगत जी जब सत्संग हुआ, छोटा सा सत्संग जो फैमिली में था, उसके बाद मैंने ये सत्संग शेयर किया तो जो मेरी नेबर है उन्होंने बताया आज उनकी बेटी भी स्टेयर्स से गिरने वाली थी और वो बाल बाल बची। लास्ट ईयर जब अपने बर्थडे के पास वो गिरी थी, उसको बहुत सारी चोटें लगी। वो घबरा रही थी कहीं दोबारा उसका बर्थडे आने वाला है, कहीं वो गिरे ना, लेकिन गुरु महाराज की ब्लेसिंग से वो बच गई। एक बार संगत जी हमारे घर में सत्संग था, बड़ा सत्संग था। तो मेरी जो बेटी है उसके ईयर में बहुत पेन हो रहा था। उस दिन उसने बोला कि मम्मा 1 कप चाय प्रसाद, 2 कप, 3 कप चाय प्रसाद। नॉर्मली वो छोटी है तो पीती नहीं है, उसको मैं बोलती हूँ तब भी, लेकिन उस दिन उसने खुद से मांगा क्योंकि गुरु महाराज पिलाना चाहते थे। और उसके बाद जो उसका ईयर का पेन था वो ठीक हो गया। संगत जी एक बार क्या हुआ कि वो सॉरी अपने स्कूल में प्लेग्राउंड में खेल रही थी और वो बोली कि एक बटरफ्लाई आई मम्मा मेरे अराउंड, चक्कर लगा के गई। उस दिन भी वो गिरते गिरते बची थी। संगत जी एक बार क्या हुआ कि उसको फ्लू हुआ और उसका फ्लू इतना बुरा था कि उसको पानी भी सूट नहीं कर रहा था, लेकिन जो गुरु महाराज का जल प्रसाद है वो उसको सूट कर रहा था। सिर्फ वही ले पा रही थी वो। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट किए। जब यूरिन टेस्ट करा, फर्स्ट टाइम जो सैंपल लिया वो गिर गया। जो दूसरी बार लिया जब मैं लेने गई तो मैंने रेस्टरूम में देखा कि बहुत सारी बटरफ्लाइज लगी हुई हैं वहाँ पे। गुरु महाराज ने अपनी उपस्थिति दिखाई और उसको सिर्फ फ्लू ही आया और गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट कटवाया। उस 1 हफ्ते में उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन गुरु महाराज ने संभाला उसको। सिर्फ जल प्रसाद पे थी वो, लेकिन गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल ठीक रखा। मेरे को ये टेंशन थी कि कहीं उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बिकॉज़ जब वो बहुत छोटी थी उसके साथ सेम ऐसा हुआ था और हमें इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा था उसको, और वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। संगत जी अभी उसको, हम सबको कोविड हुआ, उसको रैशेज़ हुए, उसके रैशेज़ बहुत बड़े हो गए थे। और जब मैंने गुरु महाराज का जल प्रसाद, चंदन टीका लगाया तो उसके वो रैशेज़ बेटर हो गए हैं। उसके लिए भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक बार हमने उसका ईयर पियर्सिंग करवाया और एक ईयर में हमेशा से ही पेन रहता था जब से करवाया, और वो दिखाती भी नहीं थी। लेकिन एक बार सत्संग में उसके दूसरे ईयर का ईयरिंग निकल गया और वो रोने लगी। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि तू दूसरा भी निकाल दे। लेकिन उस टाइम समझ नहीं आया ये चीज़, बाद में समझ आई जब हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा उसको। डॉक्टर ने बोला कि प्रोसीजर करना पड़ेगा। जहाँ प्रोसीजर के लिए लेके गए उसको, वहाँ जो डॉक्टर था उसने सबसे पहले तो स्वीट नंबर वॉज 11, हर चीज़ में गुरु महाराज के एंजल नंबर्स। उसके बाद वो प्रोसीजर से गुरु महाराज ने निकलवाया। संगत जी ऐसे ही मेरी दूसरी डॉटर के सत्संग हैं कि एक बार उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया, स्कूल बस का। मेरे को मैसेज आया कि योर डॉटर्स बस हैज़ बिन मेट विद एन एक्सीडेंट। मैं स्कूल कॉल कर रही हूँ, ऑफिस कॉल कर रही हूँ, नोबडी वॉज पिकिंग। बहुत मुश्किल टाइम था वो लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरी डॉटर का कॉल आया, वो बोली हम सब ठीक हैं, खरोच भी नहीं आई। संगत जी उस दिन मैं अपने हस्बैंड को एक सत्संग सुना रही थी, उसके थोड़ी देर बाद ही ये न्यूज़ आई थी। जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक बार एक अंकल एक फ़्लाइट में थे और टर्बुलेंट फ़्लाइट थी, वो लैंड नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से क्लाउड्स क्लियर आउट हो गए, वो लैंड हो गई। वो गुरु महाराज से मिलने गए। गुरु महाराज ने बोला कि एक संगत के लिए मुझे सब को बचाना पड़ा।
और उसके कुछ देर बाद ही मुझे ये न्यूज़ मिली, और लेकिन गुरु महाराज ने सबको बिल्कुल ठीक ठाक रखा। संगत जी, एक बार मैं अपनी डॉटर के साथ गाड़ी ड्राइव कर रही थी, और क्या होता है कि मेरे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई, और मैं उससे बात कर रही थी, तो मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई, जबकि उसमें ऑटो सेंसिंग नहीं है। और ये भी गुरु महाराज ने बहुत बड़े एक्सीडेंट से हमें बचाया। संगत जी, पल पल के सत्संग हैं, हर पल गुरु महाराज ने प्रोटेक्शन दी है। मैं कैसे अपने गुरु महाराज का शुक्राना करूं, लेकिन गुरु महाराज, मैं बस मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करे, बस मैं यही चाहती हूँ। संगत जी, आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु मास्टर के साथ। संगत जी, गुरुदेव महाराज बोल रहे हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर संध्या टाइम। तो संगत जी, काफ़ी देर हो गई, पता नहीं क्या इतनी नेगेटिविटी गई कि सत्संग शेयर ही नहीं हो रहा था संगत जी। तो मुझे संगत जी माफ़ कर देना, मेरा सत्संग इतने देर तक नहीं शेयर हुआ। तो अब इसको संगत जी, संगत परिवार को सबको जय गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरुदेव महाराज का बहुत बहुत रहमत है, गुरुदेव महाराज की। संगत जी, गुरुदेव महाराज तो हमारे अंग सही, सब पूरे संगत परिवार की तरफ से हम सही रहें, सबका भला करें, सर्वदा भला करें। गुरुदेव महाराज सबका भला करें, सबकी दुख कष्ट जो भी निरोगी कायां बख्शें। गुरुदेव महाराज सबको ब्लेस करें, सबका भला करें। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आंटी अंकल को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस करें मेरे गुरुदेव महाराज। सबका भला करें, सबका भला करें मेरे गुरुदेव महाराज। सर्वदा भला करें, सबका भला करें मेरे गुरुदेव महाराज। सबका शुक्राना गुरुदेव महाराज का। अनंत को शुक्राना गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि गुड़िया बेटी में तेरे सारे दुख कष्ट जो है दूर कर दूंगा। मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तेरे मन विराजमान हूँ। संगत जी, बहुत ही नेगेटिविटी कभी कभी इतनी भारी हो जाती है कि पूरा सिर फटने लगता है संगत जी। तो गुरुदेव महाराज सबका भला करें, सब अपने सबके पितरों को सबको आशीर्वाद चले हैं, सबको आशीर्वाद मिले अपने अपने पूर्वजों का, गुरुदेव महाराज का, मेरे माता रानी का, सबका भला करे मेरे गुरुदेव महाराज। तो संगत जी, मेरा सत्संग है, गुरुदेव महाराज बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं, सब दुख कष्ट दूर कर रहे हैं गुरुदेव महाराज। गुरुदेव महाराज ने बहुत सारे हमारे मेरे अंदर संगत जी बहुत सारी बीमारी पनपनी थी, गुरुदेव महाराज ने वो एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं गुरुदेव महाराज। सबका भला करे, सबका भला करे, सर्वदा भला करे मेरे गुरुदेव महाराज। संगत जी, में अपने गुरुदेव महाराज से यही मेरा विनती है कि गुरुदेव महाराज सबका भला करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। जो ये करने नेगेटिविटी फैलाने वाले जो ये करने का होते हैं, इनका भी कहीं सीधे रास्ते लगाएं, इनको भी सद्बुद्धि दें, इनको भी कहीं अपने चरनी शरनी लगाए रखें मेरे गुरुदेव महाराज। तो संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई होगी तो माफ़ कर देना संगत जी। तो
संगत जी अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरु जी हमें अनंत कष्टों परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं। गुरुजी 90% तो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, बस 10% ही हमें देते हैं। पर ये 10% भी संगत जी हमसे सहे नहीं जाते। गुरुजी ही हमें उन कष्टों को सहने की ताकत भी देते हैं और उस मुश्किल वक्त में गुरुजी नाम जप भी करवाते हैं। यह गुरुजी की ही कृपा है, वरना हम तो कभी के हार गए होते। गुरुजी हमारे साथ है तो लगता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहारा मिल गया है, वरना इस दुनिया में जीना आसान नहीं है। संगत जी, हमारे पिछले और इस जन्म के कर्मफल तो हमें काटने ही होंगे। बस गुरुजी का नाम जप लेकर, गुरुजी का हाथ पकड़कर यह कर्म भी कट जाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा साक्षात महाशिव है। उनके होते हुए हम बेसहारा कैसे हो सकते हैं। वे स्वयं आकर हमारा संभाल करते हैं, हमारे कष्ट हर लेते हैं। इसलिए गुरुजी आपका हर पल हर सांस का शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू अभी ऐसे कई लोगों के बीच रह रही है जो कहने के लिए तेरे अपने हैं, पर इनका व्यवहार तेरे लिए पूरा नेगेटिव है। ये लोग हर समय तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे लोगों को अपना समझते हैं, उनका ही हमेशा साथ देते हैं। तू चाहे कितना भी समझा ले, पर यह लोग बेवजह तुझसे लड़ने, तुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं जानता हूँ तू अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। तू इन लोगों की झूठी बातों से थक चुकी है। अब तुझ में और दुख सहने की हिम्मत नहीं बची। बेटा, मैं तुझे इन लोगों से बचाने ही आया हूँ। तू बिल्कुल दुखी मत हो। इस समय तेरे जीवन में जो दुख है यह अंतिम दुख है। इन सब लोगों ने तेरे साथ जितना गलत किया उसका फल इन्हें ज़रूर मिलेगा। इन्होंने तेरे साथ जितना गलत किया, अपनी हर गलती का इन्हें एहसास होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इन्हीं मैसेज के द्वारा हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कोई हमारे साथ हो या ना हो, पर गुरु जी हमेशा हमारे साथ है। हमारे भीतर क्या चल रहा है गुरु जी को सब खबर है। गुरु जी हमें सही मार्ग ज़रूर दिखाएंगे। संगत जी, गुरु जी का बहुत प्यारा मैसेज है। चल, आज मैं तुझे अपनी सेवा का मौका देता हूँ, लेकिन यह सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर इसमें तुम्हारा स्वार्थ हुआ तो यह सेवा नहीं, लालच होगी। तेरे घर में जो माता पिता है, तू उनकी सच्चे मन से जितनी सेवा करेगा, समझ लेना वो सेवा तूने मेरी की है। बेटा, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें तुमसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ चाहिए तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समय, तुम्हारे दिल में उनके लिए इज्जत। तुम उनके पास बैठकर उनसे बात करो, उनका हालचाल पूछो, उनके साथ कुछ समय बिताओ। उनको तुम्हारे साथ यह महसूस हो कि उनकी घर में कितनी अहमियत है। उनके होने से घर में खुशियाँ हैं। उनका दिया हुआ दिल से आशीर्वाद में इतनी बरकत होती है कि तुम्हें ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। उनकी दिल से निकली हुई दुआ तुम्हें कठिन से कठिन परेशानी से बाहर निकाल लेगी। इसलिए जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास है,
इनसे बहुत प्यार करो, इनका ख्याल रखो। तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद में ही मेरा आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम सभी आपकी संगत है, हमसे जैसे कर्म आप करवाना चाहते हैं वैसे ही करवाइए। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, गलतियाँ करेंगे, आप क्षमा कीजिए। हमेशा हमें सत्य और सही मार्ग पर चलना सिखाइए गुरु जी। सभी संगत पर अपनी असीम कृपा बरसाइए गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से संध्या वाला शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरुजी के पावन चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज टाइम 6:30 हुआ है। डेट है 17 सितंबर 2025। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज टेलीपैथी मैसेज में एक सत्संग भेजा है। तो सत्संग में हेडिंग था, तेरे को एक सेवा का मौका दे रहा हूँ। टेलीपैथी मैसेज में नहीं, ऐसे ही जो सत्संग आते हैं ऐसे में। सॉरी, मैंने गलत कुछ बोल दिया, क्षमा करना गुरु जी। मेरे पास एक सत्संग भेजा गया है, उसमें लिखा था, तेरे को एक सेवा का मौका दे रहा हूँ। तेरे घर में एक विपदा आ रही है, ये सेवा से टलेगा। तो मैंने सुना है वो सत्संग। उसमें एक आंटी बोल रहे थे, जो कमर की दर्द था और आंखों का रोशनी, वो गुरुजी कैसे ठीक कर दिया। और अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो गुरुजी इसलिए सारे पितृपक्षों को जो दोष लगता है, पितृपक्षों से क्षमा मांगने के लिए बहुत सारे उपाय बताता है। इस सत्संग में भी एक उपाय था। संगत जी, पहले मेरे को गुरुजी दिया था 7 दिन गुरुजी के सामने बैठ के पितृ जो पूर्वजों के उद्देश्य में क्षमा मांगना। तो इस सत्संग में गुरुजी ने सुनाया, सत्संग से माध्यम से, जो तुलसी माता की जो पौधा है उनके सामने एक कटोरी में गंगा जल लेके जाना है और हाथ में डाल के पितृ जो पूर्वजों को नाम स्मरण करके ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के तुलसी माता को अर्पण करना है। ऐसे 5 बार करना। तो मेरे को सत्संग में सुन के मैंने किया भी हुई। तो गुरुजी हमें बचाने के लिए, हमारे रक्षा के लिए गुरुजी ये सब उपाय बता रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, एंडलेस शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। हमें पता ही नहीं होता है कैसे क्या करना होता है, आप सब बता देते हो कितनी सिंपल तरीका से।
इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और भी छोटे मोटे उपाय है, तो दूसरी कोई तंत्र मंत्र के लिए, तो ये सब तो है ही, ये सब गुरुजी बताते हैं। लेकिन जो मेरे को लगा, जो पितृपक्षों में गुरुजी कैसे कैसे निर्देश दे रहा है, तो ये सब उपाय कर, इसमें पितृ जो पूर्वजों सब खुश होता है, ये हमें करना चाहिए संगत जी। गुरुजी जो जैसे बोल रहे हैं हमें करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बोला है, संध्या वाला का एक सच्चा शुक्राना तेरे सारे रुकावटें खत्म कर देगी। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, ये बताने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। हमें आलस भी आ जाए, नहीं करना चाहता, हमारा हाथ पकड़ के कराना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ये बताने के लिए शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी ने बोला, तेरी चौखट बरकत से भर जाएगी, चारों तरफ से शुभ समाचार आएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला, तेरे पोती को ब्लेस कर दिया, बरकत नहीं रुकेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। ये सब मैसेज आने से मन इतनी खुशी हो जाती है संगत जी, बहुत खुश होता है मन कि हमारे पास कोई गाइड कर रहा है, हमारे पिता हमारे हाथ पकड़ के सब करा रहे हैं हमारी भलाई के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और भी मैसेज आया था, लेकिन संगत जी मैं जब बोलने जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ, गुरुजी क्षमा कर देना। शायद गुरुजी इतना ही बुला रहे हैं, यही बुलवाने चाहता है गुरुजी। तो आज इतना ही मेरा शुक्राना सत्संग। गुरुजी की मेहर अपरंपार है, गुरुजी हमारे ऊपर इतने मेहर करते, सारे संगत को भी पता है, और डेली यही सब हमारे मन में उत्सुकता रहते हैं, गुरुजी आज मुझे क्या बोल रहे हैं। पितृपक्ष 30 से 15 दिन में गुरुजी कितने कुछ निर्देश दिया है, मैंने पालन करने की कोशिश की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किसी भूखा को खिलाओ, किसी गरीब को दान करो, चिटिया को खिलाओ, पक्षी को खिलाओ, गाय को खिलाओ, ये सारे आशीर्वाद है। और इसके माध्यम में पितृज भी खुश होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। तो आज मैं यहाँ पे मेरा शुक्राना सेशन खत्म करना चाहूँगी। सॉरी, मेरे कहने में भूल हुई है। आज मैं यहाँ पे मेरे वाणी को ख़त्म करना चाहूँगी, अगले शुक्राना सेशन तैयार करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी ने मुझे और एक चमत्कार किया मेरे साथ, मैं भूल गई थी। आज मैं सत्संग सोते हुए सत्संग सुन रही थी दोपहर में, तो सत्संग खत्म होते ही अचानक मंत्र जाप शुरू हो गया, और वो चलते ही रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं बताया। शायद गुरुजी कुछ कर्म काट रहा है, शायद गुरुजी कुछ अच्छा कर रहा है।
अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो गुरुजी क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते हैं आप जितना शुक्राना करोगे उतना मैं आपका काश काटते रहूँ। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। संगत जी मुझे थोड़ा कोल्ड बहुत हो गया है। अभी तो मुझे एक हफ्ते से बहुत कोल्ड था संगत जी। मैं जल प्रसाद चंदन का टिक्का लगा कर ही मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। तो आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, दवा लेके आई। गुरुपा बोले, गुरुपा ने मैसेज में दिया था बेटा तो डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर अपना काम करेगा मैं अपना। तो आज मैं जाके होम्योपैथी दवा लेके आई संगत जी। थोड़ी सी मेरी सर्दी कोल्ड ठीक हो गई है संगत जी। 2-3 दिन से मुझे बहुत चक्कर वगैरह आ रही थी, मेरा बीपी लो हो गया था शायद। सुबह उठने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पता नहीं संगत जी मुझे उठा ही नहीं जाता। फिर भी गुरुपा मुझे इतने अच्छे से मैसेज देते। गुरुपा बोलते अभी तुम्हारे ये पूरे मतलब दिवाली सब कुछ अच्छा जाने वाला है, तुम्हें कभी पैसे की तंगी नहीं होगी, तुम ऐसे ऐश करोगे। तुम्हारा बेटा, मैंने तुम्हें नया गाड़ी ब्लेस किया, घर ब्लेस किया, मैंने घर देखा हुआ है, वहाँ पर मेरा स्वरूप लगेगा। गुरुपा ने बहुत अच्छे से मैसेज दिए संगत जी। और मैं बोलती ना संगत जी, गुरुपा मेरा इतना ध्यान रख रहे ना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। पता नहीं संगत जी मुझे घर से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती। तो गुरुपा बोलते थे बीच में वापस हो दो, मेरी नेबर और आर वाले नाम और ये वाले नाम वो लोग वापस तुम्हारे ऊपर कर दे। पता नहीं संगत जी, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया। गुरुपा ने तो बोला था सबको माफ़ कर दो, तो मैंने तो कब का माफ़ कर दिया। और संगत जी, और मैं ज़्यादातर मैं गुरुपा का पूजा नहीं करती, सिर्फ बत्ती लगाती हूँ। पहले मैं फूल वगैरह लेके आती थी, अभी नहीं लाती ज़्यादातर, क्योंकि कभी कभी लाती हूँ कभी नहीं। मगर बत्ती में जलाती हूँ और मैं भोग लगाती हूँ कभी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। मेरे कमर में भी ना संगत जी बहुत दर्द है। मैं चंदन का टिक्का वो लगाती हूँ, मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, वो ठीक होता है। फिर से पता नहीं 2 दिन के बाद फिर मुझे तकलीफ़ होती है। अब ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की ही निशानी है संगत जी। गुरुपतों में कब का मुझे ठीक किए, मेरे बेटे को, हम लोग दोनों को नया जीवन दिए। तो हम गुरुपा को कितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है संगत जी। और मैं कितने दिन से मंदिर भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे अंदर ताकत ही नहीं, शक्ति ही नहीं है। मैं जाना चाहती हूँ मगर मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर पा रही। और मैं अभी वही मेरे बेटे की चिंता में हूँ, वो अभी तक जॉब पे नहीं है, घर पे ही है। और घर में गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है, फिर भी गुरुपा मेरे घर को चला रही। आमदनी हम खा रहे पी रहे उसमें हम खुश है, ऐसे सुखी है हम लोग, ऐसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ इमरजेंसी आए तो उस समय में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर गुरुपा संभाल लेंगी। अभी मुझे थोड़ा आँखों में डॉक्टर को भी बताना है, क्योंकि मेरे आँखों में बहुत दर्द भी हो रहा है। एक आँख का मोतीबिंद का ऑपरेशन हो गया मेरा, दूसरे आँख का भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं गैस के सामने रहती हूँ ना संगत जी, खाना पीना सब कुछ मैं ही बनाती हूँ, तो थोड़ा तकलीफ तो होता है आँख का ऑपरेशन के बाद में। तो अभी जाके बताना पड़ेगा, अभी 1 साल होने को आया। डॉक्टर के पास भी मैं गई नहीं संगत जी, अभी जाऊँगी। फिर मेरे दाँत में भी दर्द था, और दाँत भी मेरा टूटा है, उधर भी फिलिंग को बनाना है। और डॉक्टर लोगों ने भी कुछ 1,000-900 रुपये बोले ला, मैं बता के तो आई। अब देखते अगले महीने ही सब कुछ होगा, तब तक गुरुपा मुझे संभाल लेंगे, जैसे तैसे हम चला लेंगे।
अभी थोड़ी घर की साफ सफाई भी करनी है। सिर्फ 2 रूम हो गए अभी और 3 रूम बाकी है, उसको भी कर दूँगी। गुरुपा का भी रूम करना है, बेटे का और किचन भी। तो जैसे तैसे कर रही, क्योंकि मेरे हाथों में भी बहुत पेन है संगत जी। मेरे हाथों में वो नसें ना एकदम ब्लॉकेज हो रहे बार बार। अभी उसको फिजियोथेरेपी करने गुरुपा बोलते हैं, और इतना मैं वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकती संगत जी। इसके लिए कभी जाती थी, कभी आज भी, आजकल तो वो भी बंद हो गए। अभी मैं आइस घुमाती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, और उसी में काम चला रही हूँ। बाकी गुरुपा का ब्लेसिंग है ना। मंत्र जाप करती हूँ मैं। आजकल मेरा मंत्र जाप करना भी कम हो गया है, इसके लिए मेरे बॉडी में इतनी सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि पहले मंत्र जाप ज़्यादा करती थी, इतना तकलीफ नहीं होता था। अभी मंत्र जाप कम कर रही तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो गुरुपा बोलते बेटा मंत्र जाप किया कर। और मैं आजकल लोग शिव कुरान का ही पाठ सुन रही हूँ। सुबह उठती ही वो आता है वही लगाती हूँ। फिर कुछ गुरुपा का सॉन्ग सुनती हूँ, ओम नमः शिवा का, या तो सत्संग सुन के स्पीकर पे लगा के मैं काम करती हूँ, सुनती हूँ पूरा। कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती संगत जी, कि जैसे तैसे मैं काम मुझे गुरुपा सब करा के लेती, और मैं थक जाती, मेरे बैक में बहुत पेन है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरुपा हमेशा ब्लेस करते, बेटा चिंता नहीं करने का, अभी तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। ये मैसेज में बोल रही थी, तुम्हारे पास पैसे गिनने की भी फुर्सत नहीं, इतना सारा मैं पैसा तुम्हें दूंगा, तुम्हारा बेटा अच्छा नाम कमाएगा, तो उसको मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसे संभाल लूँगी, उसके नाल में हमेशा रहता हूँ, तो चिंता मत कर, तो अपना ध्यान रख करके गुरुपा मैसेज में बोलते रहे। और संगत जी इतने अच्छे से मैसेज देते हैं ना गुरुपा, कि मैं बता नहीं सकती। इस बार मैंने नया मैक्सी 2 अंडरवेयर भी खरीदा गुरुपा की वजह से, और छोटे छोटे चीज़ अभी मैं खरीदना शुरू कर दिए है। बाकी सब अभी दिवाली का जो भी शॉपिंग है, जो भी कराने, सब गुरुपा ही देखेंगे। उनकी बेटी को कब करना है क्या नहीं, गुरुपा खुद बताएंगे। और मुझे गुरुपा की पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमें शॉपिंग कराएंगे। मेरा घर का भी सारा खर्चा भी, लक्ष्मी पूजन का भी छोटा मोटे में सादे में करूँगी, मैं करूँगी ज़रूर संगत जी। बस यही मेरा शुक्राना था। मेरे घर के ऊपर गुरुपा ने चारों तरफ एंजल्स लोग को रखा हुआ है, बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये पड़ोस वाले थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, मैं देखती हूँ, वो आजकल घर के बाहर नहीं, ज़्यादातर घर में रह के कुछ ना कुछ करते, पर मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि गुरुपा जिनके साथ में, महाशिव हमारे घर में बैठे, विष्णु महालक्ष्मी जी हमारे घर में, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। वो हमारी, मेरे बेटे की, मेरी दोनों का रखवाले, मेरे घर के रखवाले, मेरे घर को हम दोनों को कुछ होने नहीं देंगे। गुरुपा ने प्रॉमिस किया, गुरुपा ने बोला जो कोई भी तुम्हें ये करेगा उसको पहला मेरा सामना करना होगा, तुम्हारे बाल तक मैं बाका करने नहीं दूंगा बेटा, तुम डरना नहीं, बस मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ कर लूँगा। तुम मेरे पर पूरी तरह भरोसा कर। और मैं पूरी तरह गुरुपा पे भरोसा करती हूँ संगत जी। अब मेरे हेल्थ सब कुछ अच्छा होगा, पता नहीं अचानक फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर भी गुरुपा है, वो देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आने वाला समय, गुरुपा ने इतने मैसेज दिए तो सब कुछ अच्छा ही होगा, गुरुपा ने बोला तो सब अच्छा ही होगा, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अच्छा हो, और जो भी हमारा जो केस है दोनों हमारे फेवर में हो, उसके लिए मैंने गुरुपा से दरख्वास्त किया, और वो ज़रूर हमें जिताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। अब मैं यही विराम लेना चाहती हूँ, तो मैं मंत्र जाप करती, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, ठीक है संगत अनंतम जी, अनंतम थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पूरे शुक्राना कर, इसलिए मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी का कितनी बार मैसेज आ रहा है कि तेरे बच्चों ने करोड़ों का मालिक बनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, स्वास्थ्य का शुक्राना, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना। बच्चों के सर पर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमारे बहुत से कष्ट काटे हैं और गुरु जी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था, गुरु जी ने ही उसे उस कष्ट से बाहर निकाला है। यह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम व शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं और सबके कष्ट हर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे और भी मैसेज आ रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों के साथ मैं खड़ा हूँ, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत सारे कष्टों से बाहर निकाला है और आगे भी गुरु जी की कृपा हमेशा हम पे बनी रहेगी। हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सबका भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन गुरु जी, वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, नीचे मैसेज आ रहा है कि अब तेरे पति की काम में बरकत ही बरकत आएगी। ये मैसेज अपने पति को शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें टेलीपैथी से बहुत सारे इशारे बताते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, वो सभी संगत के कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो अंकल हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, उनके भी कष्ट काटना और उनको भी खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना।